Good afternoon, everyone. Today I am here with some another topic which is Incredible India. So, in this topic, we are going to discuss the topics location of India on the world map, India's neighbors, its इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, and a government and levels of government. These are the points which we discuss in this topic. Okay. So first is location of India on a world map. Okay, so kids, as you all know, there are 7 continents in the world. They are Asia, Africa, Europe, South America, North America, Antarctica and Australia. These are 7 continents in the world, and Asia is the largest continent in the world, and our India is situated in Asia continent. Okay, so India is located in the southern part of Asia. Southern part means it is not northern part, it is southern part. So India is located in the southern part of Asia continent, and Asia is the largest continent. Okay, it is the 7th largest country in the world, or India is the 7th largest country in the world. इंडिया जो है वो 7 नंबर पे आती है, वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट कंट्रीज है उनमें 7th नंबर पे आती है. Its area is around 3.287 million square kilometer. So इंडिया का जो इंडिया जो है वो 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है. इतना बड़ा इसका एरिया है. ओके, सो द 6 कंट्रीज बिगर देन इंडिया आर, और इंडिया से जो बड़ी कंट्रीज है, इंडिया जो है वो 7th नंबर पे आती है, और इंडिया से जो अदर कंट्रीज है जो आती है वो है रशिया. रशिया इज ऑन 1st लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. एशिया, Canada, USA, China, Brazil and Australia. These are the other 6 countries which are larger than India. Okay. India is also the most populous country in the world, or India is most populous country in the world. सबसे ज्यादा जो population है वो अब इंडिया में है. Okay. Next. India consists of the mainland and 2 groups of island. तो इंडिया के अंदर क्या है? इंडिया के अंदर एक इसका जो ये मेनलैंड है वो है, और यहाँ पे 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है विच इज लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. सो इंडिया कंसिस्ट ऑफ मेनलैंड एंड इट्स 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड. ओके, the Lakshadweep in the Arabian Sea and the Andaman Nicobar Island in the Bay of Bengal. Okay, so this is the direction of India: north, it's north, it's south, it's east and it's west. So there are 4 direction. Okay, so in इंडिया के जो ईस्ट साइड में है यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, एंड सदर्न वेस्ट साइड में है इसका अरेबियन सी. ओके, सो दीज आर द 2 सीज. तो इंडिया इज सराउंडेड बाय द 3 इंडिया इज अ पेनिनसुला क्योंकि इट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड. सो देयर इज द अरेबियन सी इन अ साउथ वेस्ट, देयर इज अ बे ऑफ बंगाल इन अ साउथ ईस्ट, एंड इन द bottom there is the Indian Ocean. Okay, so Lakshadweep Islands are situated in Arabian Sea and Andaman Nicobar Islands are situated in Bay of Bengal. Okay, it stretches about 3,214 kilometers from North Kashmir to South कन्याकुमारी. इंडिया जो है वो यहाँ से नॉर्थ साइड से साउथ साइड में जो इसका डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसका इंडिया का, वो कितना है? वो है 3,214
kilometer from north to south, means Kashmir to Kanyakumari, and 2933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और ईस्ट से वेस्ट साइड में इंडिया का जो किलोमीटर है वो है 2933 किलोमीटर। तो इंडिया जो है वो नॉर्थ से साउथ की साइड में 3214 किलोमीटर तक फैली हुई है, और ईस्ट से वेस्ट तक 2933 किलोमीटर तक फैली हुई है। ओके, द लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज अबाउट 15,200 किलोमीटर लॉन्ग। तो इंडिया का जो फ्रंटियर है, जहां पर इंडिया लैंड से सराउंडेड है, जहां लैंड है इंडिया का, वो है 15,200 किलोमीटर। This one, this is 15,200 kilometer, and the coastal line of the mainland is about 6,100 kilometer long. 6,100 kilometer long. इंडिया की जो coastal line है, which is 6,100 kilometer long. इंडिया की जो coastal line है वो 1600 किलोमीटर लंबी है। The total length of the coastal line, including of the other scattered islands, is 7,516.6 किलोमीटर। इंडिया की जो कोस्टल लाइन है, जब हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं आइलैंड्स, इसके इंक्लूड कर लेते हैं, तो इसकी जो कोस्टल लाइन्स है वो कितनी उसका किलोमीटर होगा 7,516.6 किलोमीटर। ओके, अंडरस्टूड? Next topic is India's neighbor, means we learn about neighboring countries of India. Okay, so here is a map where you can see the neighboring countries of India. Okay, in the north side it's north, south, east and west. Okay, so in west, north west side में है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, एंड ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में है इसके चाइना, भूटान, नेपाल। ओके, ईस्ट में बांग्लादेश, म्यांमार। ओके, एंड साउथ में है श्रीलंका एंड मालदीव्स। दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। ओके, सो इंडिया शेयर इट्स बाउंड्री विथ मैनी कंट्रीज। इंडिया जो है वो अपनी बाउंड्री बहुत सारी कंट्रीज के साथ शेयर करती है। These countries are called neighbors or neighboring countries of India. So what are neighboring countries? Countries from which India share its boundary. Okay, तो neighboring countries वो countries हैं इंडिया की जिसके साथ इंडिया अपनी बाउंड्रीज शेयर करती है। Okay, so as you can see, Pakistan and Afghanistan are in north west. पाकिस्तान और अफगानिस्तान इंडिया के नॉर्थ वेस्ट साइड में है। नेपाल, भूटान, चाइना टू द नॉर्थ। नेपाल, भूटान, चाइना ये है इंडिया के नॉर्थ साइड में। बांग्लादेश एंड म्यांमार ईस्ट साइड में है। श्रीलंका, मालदीव्स इन साउथ। ओके, बट ऑल्सो दे डू नॉट शेयर देयर लैंड बॉर्डर टू द इंडिया। जो आपके मालदीव्स हैं और श्रीलंका जो है वो इंडिया के साथ अपने लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, बट दे आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इंडिया का फिजिकल डिवीजन क्या है? फिजिकल डिवीजन मीन्स फिजिकल डिवीजन के अंदर आते हैं लैंड फॉर्म्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज और आपके प्लेन्स, डेजर्ट, ये सारे एरियाज आते हैं फिजिकल डिवीजन में। ओके, तो जहां आपको ब्राउन कलर दिख रहा है, ग्रीन कलर दिख रहा है, येलो कलर दिख रहा है, ये सब किसी ना किसी लैंड फॉर्म को इंडिकेट करते हैं। ओके, सो इंडिया हैज वेरियड लैंड फॉर्म्स। इंडिया के पास में बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं। It has high mountains, vast plains, deserts, plateaus,
आइलैंड्स, दीज आर द लैंडफॉर्म्स ऑफ इंडिया। इंडिया के पास बहुत कुछ है, माउंटेन्स भी है, किसी प्लेस पर इसके प्लेन्स है, कहीं प्लेट्यूज है, कहीं आइलैंड्स है। ओके, मैनी रिवर्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द माउंटेन्स। अब इन माउंटेन्स होते हैं, यहाँ से बहुत सारी जो नदियां हैं वो ऑरिजिनेट होती हैं, ठीक है, माउंटेन से और प्लेट्यूज से, एंड फ्लो थ्रू द प्लेन्स। और ये कहां तक बहते हैं? प्लेन से, प्लेन की तरफ से बहते हैं। इंडिया कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग फिजिकल डिविजन्स। इंडिया के जो फॉलोइंग जो डिविजन्स हैं वो कौन कौन से हैं? 6 डिवीजन में, 6 डिविजन्स है इंडिया के। वो क्या क्या है? नदर्न माउंटेन, जो कि आपको ब्राउन एरिया दिख रहा है, जितना भी ब्राउन एरिया आपको यहाँ दिख रहा है मैप में, वो है नदर्न माउंटेन्स। ये जितना भी एरिया है, इन सारे एरियाज में माउंटेन्स हैं। ओके, नदर्न प्लेन, जितना भी आपको लाइट ग्रीन कलर दिख रहा है, जिन भी एरियाज में यहाँ आपको जो भी लाइट ग्रीन एरिया दिख रहा है, विच इज नदर्न प्लेन्स। ओके, एंड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। So as you see, there is a yellow part which is Great Indian Desert, means Thar Desert है यहाँ पे. Okay, and the Peninsular Plateau, it's a light skin color which you can see there. This is Peninsular Plateau, and the coastal plains, जो आपको coastal lines दिख रही है बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर में, this one, ये है कोस्टल प्लेन्स। तो कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं? कोस्टल प्लेन्स वो एरिया होता है जहां लैंड और ओशंस मीट करते हैं, ठीक है, आपस में मिलते हैं, वहां उस एरिया को बोलते हैं कोस्टल लाइन। ओके, आइलैंड्स, और जो आपको ब्लू एरियाज दिख रहे हैं, जैसे ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, ये लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं यहाँ पर, तो दीज आर आइलैंड्स ऑफ इंडिया। Okay, so this is the physical division of India. Okay, in the northern mountains, plains, Thar desert, peninsular plateaus, coastal lines, okay, and islands. This is the physical division of India. Okay. Our next topic is political division of India. India का जो political division है वो थोड़ा अलग है फिजिकल डिवीजन से। ओके, एज यू कैन सी इन द मैप, इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, इट इज अ वेरी बिग कंट्री, इट इज अ ह्यूज कंट्री विथ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 140 करोड़। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है 140 करोड़ से भी ज्यादा है। ओके, in order to run the country smoothly and take better care of the people, it's divided into 28 states and 8 union territories, including the national capital territory of India. India के जो political division में इंडिया को states में और union territory में divide किया गया है। ओके, तो ये जितने भी आपको parts दिख रहे हैं, these are the states and union territories of India. So India has 28 states and 8 union territories. तो इंडिया के पास कितनी स्टेट्स हैं? इंडिया के पास 28 स्टेट्स हैं और हर स्टेट की अपने अपने कैपिटल्स हैं, एंड देयर आर यूनियन टेरिटरीज। ओके, सो आई थिंक अगर आपसे पूछें कि व्हाट आर यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज क्या होती है? तो यूनियन टेरिटरीज आर द प्लेसेस which are directly governed by the यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जो डायरेक्ट जिन स्टेट्स को या डायरेक्ट यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है, तो वो होती है यूनियन टेरिटरी। तो इनके ऊपर जो रूल होता है वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो आपकी जो पूरी होल कंट्री है वो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, और जो स्टेट्स होते हैं, जैसे पर्टिकुलर स्टेट की बात करें हम, ये राजस्थान पर्टिकुलर स्टेट है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है जो कि उस पर्टिकुलर स्टेट को रन करवाती है, अपने जो भी लॉज होते हैं उन सबको यहाँ अपने स्टेट में ही लगाती है। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने रूल्स होते हैं वो ओवरऑल पूरी कंट्री पर लागू होते हैं। ओके, नेक्स्ट।
So there are the names of states and capitals. So there are 28 states. So first state is Andhra Pradesh. Andhra Pradesh. There is the state name and there is capitals. So what is the name of the capital of Andhra Pradesh? Amravati. So what are capitals? Capitals are the main city of the state or a country. किसी भी country की जो main city होती है या किसी state की main city होती है वो उसकी capital होती है. Okay? So Arunachal Pradesh, Itanagar. Itanagar is the capital of Arunachal Pradesh. Assam. Assam की capital है Dispur. Bihar, Patna. छत्तीसगढ़, रायपुर. गोवा, Panaji. Gujarat, Gandhinagar. Haryana, Chandigarh. These are the capital of these states, and there is Himachal Pradesh. Capital is Shimla. Jharkhand, Ranchi. Karnataka, Bangalore. Kerala, Thiruvananthapuram. मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलांग, मिजोरम आइजॉल, नागालैंड कोहिमा, ओडिशा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तराखंड देहरादून, उत्तर प्रदेश लखनऊ, वेस्ट बंगाल कोलकाता. So these are the 28 states, okay, and their capitals. Which states are the place which is run by state government. In state government जो है अपने laws, अपने rules अपने अपने states में ही इनको follow करवाते हैं. Okay. Okay, so Rajasthan is the largest state and Goa is the smallest state of India. अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे Yes. So Rajasthan is the largest state. जो सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का वो है राजस्थान और जो सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है which is Goa. Goa is the smallest state of India. Okay. Uttar Pradesh has highest population and Sikkim has the least population. जो सबसे ज्यादा population है इंडिया के वो उत्तर प्रदेश स्टेट में है और सबसे कम population जो है वो सिक्किम में है. Okay. Next, Union Territories and their capitals. इंडिया की जो यूनियन टेरिटरीज हैं विच इज रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकी कैपिटल्स भी हैं. ओके. सो अंडमान निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर. चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़. चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ 2 स्टेट आल्सो हरियाणा. दिस इज द कैपिटल ऑफ 2 स्टेट्स. ओके. हरियाणा की कैपिटल है एक तो चंडीगढ़ और एक है So Chandigarh is the capital of 2 states, Haryana and Punjab. दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव. सो इनकी जो कैपिटल है वो दमन है. नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली द न्यू दिल्ली एंड न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया आल्सो. जम्मू एंड कश्मीर इट हैज 2 कैपिटल श्रीनगर एंड जम्मू. इन समर्स इट्स कैपिटल इज श्रीनगर एंड इन विंटर्स कैपिटल इज जम्मू. लद्दाख कैपिटल इज लेह. Lakshadweep Islands capital is Kavarachi and Puducherry capital is Pondicherry. Okay, so these are the capital of union territories. So fact scope, there is a fact scope in 1920. In 1920, Dadar and Nagar Haveli and Daman and Diu were merged into a single union territory. तो 2022 से पहले दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव जो है वो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी. बट आफ्टर 22 इसको मर्ज करके एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है और इसकी एक कैपिटल है विच इज दमन. ओके. द हिमालयज आर द होम टू सम ऑफ द टॉलेस्ट माउंटेन्स. हिमालय जो है वो बहुत ज्यादा टॉलेस्ट माउंटेन्स का होम है in the world like Mount Everest, K2,
नंदा देवी, ये सारे माउंटेन्स के नेम हैं जो कि हिमालय के अंदर सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट इज आवर गवर्नमेंट। अब हम पढ़ेंगे हमारी गवर्नमेंट के बारे में कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसे रन करती है, कैसे चलती है, और इसके अंदर कौन कौन से लोग हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंडिया हैज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो व्हाट इज द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? तो अब्राहम लिंकन ने बताया डेमोक्रेसी मीन्स फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन इज अ डेमोक्रेसी। ओके, इन डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं वो इलेक्शन के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, और जिस रिप्रेजेंटेटिव को वो चूज करते हैं वही गवर्नमेंट को रन करवाता है। ठीक है, in this type of government the citizen of a country vote and choose their representative। तो इस टाइप की गवर्नमेंट में जो लोग होते हैं कंट्री के वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। कैसे? बाय द इलेक्शन, अपने वोट दे करके। ओके, दीज इलेक्शन आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर, और इलेक्शंस जो है वो हर 5 ईयर्स में होते हैं। A person who is 18 years or above is eligible to vote in elections। तो इलेक्शंस के लिए वोट देने के लिए कौन से लोग एलिजिबल होंगे, कौन दे सकते हैं वोट? 18 इयर्स और या फिर 18 इयर्स से अबव जितने भी लोग हैं वो सब वोट कर सकते हैं। ओके, दे आर एडल्ट पीपल। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट के कितने लेवल्स हैं, हमारी जो गवर्नमेंट कितने लेवल्स में डिवाइडेड है? अब गवर्नमेंट हैज 3 मेन फंक्शंस। तो किसी भी गवर्नमेंट के जो 3 मेन फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? इट मेक्स द रूल्स, को रूल्स बनाने होते हैं। इट एनफोर्स द रूल्स, जो भी लॉज वो बना रही है जो उसको एनफोर्स मींस उसको लागू करवाने का काम है। एंड इट गिव्स जस्टिस, और लोगों को जस्टिस देना। ये सारे 3 वर्क्स है जो कि किसके हैं? गवर्नमेंट के वर्क है। ओके, द 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट की जो है हमारी जो गवर्नमेंट है वो 3 ब्रांचेस में वर्क करती है, विच इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। These are the 3 branches of government: legislature, executive or judiciary. Okay, what is the work of legislature? The work of legislature is to make laws. जो भी लॉ होते हैं वो लेजिस्लेचर ब्रांच बनाती है। हमारी गवर्नमेंट में जितने भी लॉज होते हैं वो लेजिस्लेचर ब्रांच बनाती है। ओके, नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव, टू इम्प्लीमेंट लॉज। तो जो भी अब लॉज बन गए हैं तो इनका काम होता है लॉज को इम्प्लीमेंट करवाना, लोगों के अंदर लागू करवाना कि लोग इनको फॉलो करें। ओके, थर्ड है जुडिशरी। इसका वर्क होता है टू डिलीवर जस्टिस। तो अगर लोगों के साथ कुछ गलत हो गया है, ठीक है, कोई क्राइम हो गया है, तो लोग कहाँ जाएंगे? जुडिशरी डिपार्टमेंट में जाएंगे जहां लोग को जस्टिस मिलता है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है इसकी 3 ब्रांचेस हैं। ओके, नेक्स्ट, द लेजिस्लेचर मेक द लॉज। तो जो लेजिस्लेचर है उसका वर्क क्या है? लॉ बनाने का है। वंस लॉज आर मेड एंड पास्ड, जब एक बार लॉ बन जाता है और वो पास हो जाता है उसके बाद में the executive ensures that people follow them। तो ये किसको श्योर करना है? ये काम किसका है? आगे एग्जीक्यूटिव का, इनका वर्क है, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का वर्क है कि अब जो भी लॉ बन गया है ये उनको लोगों को फॉलो करवाना है। इफ पीपल फेल टू फॉलो द लॉ, अगर लोग उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, दे कैन बी पनिश्ड बाय एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जो डिपार्टमेंट है ये लोगों को पनिशमेंट दे सकते हैं, इनके पास राइट है। अगर लोग गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनको पनिशमेंट मिल सकता है। इन केस पीपल फील दे आर रॉन्गली पनिश्ड, अगर लोगों को लगता है कि उनको गलत
पनिशमेंट मिला है, एंड लॉ इज नॉट बीइंग फेयर टू देम, जो भी लॉ है वो उनके लिए सही नहीं है, देन दे गो टू द जुडिशरी टू सीक जस्टिस, वो जस्टिस लेने के लिए जुडिशरी में जा सकते हैं, जिसमें हमारे कोर्ट्स आते हैं सारे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स। ओके, सो नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स। हमारी जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल्स में डिवाइडेड है। हमारे जो पूरी इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल्स में वो करती है, विच इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, सो व्हाट इज द वर्क ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्क होता है पूरी कंट्री को देखना। ओके, तो हमारी जो 4 कंट्रीज के अंदर 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज है, तो इन सब के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है। वी हैव अ गवर्नमेंट टू रूल ओवर द होल कंट्री, तो इसका जो वर्क होता है वो पूरी कंट्री पर रूल करना होता है। तो ये जो भी लॉ बनाएंगे वो पूरी कंट्री के लोगों के लिए बनाते हैं, विच इज कॉल्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट विच रन होल कंट्री, जो पूरी कंट्री को चलाती है। ओके, अब इसके नीचे आती है स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि हमारा जो पूरा कंट्री है वो स्टेट में डिवाइडेड है, अलग अलग स्टेट्स है, 28 स्टेट्स है, 7 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सिर्फ स्टेट्स को गवर्न करती है, और जो यूनियन टेरिटरीज है वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती है। ओके, सो अ स्टेट गवर्नमेंट इज यूनिट ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज डेजिग्नेटेड टू मेक एंड एनफोर्स लॉ विद इन द स्टेट्स। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सिर्फ अपने स्टेट्स के लिए ही जो भी लॉज है, जो भी है एनफोर्स करेगी लॉ, वो सब कुछ अपने ही स्टेट में ही करेगी। ठीक है, अदर स्टेट्स से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपने स्टेट्स के बारे में ही सोचेगी, अपने स्टेट्स के ही लोगों के वेलफेयर के बारे में उनको सोचने का काम है। तो हर स्टेट के पास अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट है। ओके, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सो देन देयर इज अ सेपरेट गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ विलेजेस, सिटीज एंड टाउन्स। अब जो स्टेट्स हैं वो विलेजेस में या सिटीज में, इनमें डिवाइडेड होते हैं, और हर एक विलेज सिटीज के केयर करने के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है। ओके, विच इज तो इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर जो भी आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज, ये सब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, जो पर्टिकुलर सिटी को देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हम बात कर रहे हैं सबसे बिल्कुल डिस्क्राइबली हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की। द सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट मेक्स लॉ फॉर द एंटायर कंट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरी होल कंट्री के लिए लॉ बनाएगी। ठीक है, जितना भी उनका जो भी लॉज है, जो भी स्कीम्स है, वो पूरी कंट्री के लिए होती है। इट इज द हेड ऑफ ऑल अदर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो जितने भी लेवल्स है, चाहे वो सेंट्रल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, इन सबका जो हेड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे अपर होती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट, द पार्लियामेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 3 जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, किसके? प्राइम मिनिस्टर के साथ, ये भी इंक्लूड होते हैं किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 3 जो लोग हैं, या फिर आप कह लो कि 3 इनके ब्रांचेस में ये काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, विच इज प्रेसिडेंट, ओके, विच इज द हाईएस्ट पोजिशन, ओके, द पार्लियामेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिलर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के जितने भी मिनिस्टर्स हैं जो उसकी काउंसलिंग में होते हैं, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वो करते हैं। ओके, इट ऑफिशिएटेड इन न्यू दिल्ली। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसका सारा काम न्यू दिल्ली से होता है, बिकॉज न्यू दिल्ली इज आवर नेशनल कैपिटल। नेक्स्ट इज स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, ईच स्टेट इन इंडिया हैज इट्स ओन गवर्नमेंट। हर एक स्टेट की अपनी खुद की एक गवर्नमेंट होती है, विच इज कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट।
and legislature called विधानसभा and legislative assembly। तो हम इसको क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर विधानसभा। ओके, इट वर्क्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है वहां पार्लियामेंट होती है, यहाँ पर विधानसभा होती है विच वी कॉल लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव असेंबली। इट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ दैट स्टेट। तो जिस स्टेट की गवर्नमेंट है वो सिर्फ अपने ही स्टेट के लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचेगी। द स्टेट गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ गवर्नर, काउंसिल मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद चीफ मिनिस्टर्स एज इट्स हेड। तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है एक उसमें गवर्नमेंट हेड गवर्नर होता है और साथ में चीफ मिनिस्टर होता है इसके साथ अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, इसका हेड होता है चीफ मिनिस्टर। और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। ओके, so our last topic is the local self government. The local self government. Okay, this is the smallest level of government. Local self government is formed into towns, cities and villages. तो local self government है वो टाउन्स के अंदर होती है, सिटीज के अंदर होती है, विलेजेस के अंदर होती है। The local people of this area elect their representative who run the government. तो पर्टिकुलर जो एरिया होते हैं वहां के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट देके चुनते हैं। They manage the affairs of that particular place. तो इन जो भी प्लेसेस होते हैं पर्टिकुलर प्लेसेस में जो भी उस प्लेस का रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसे लोगों ने चुना है वो उस पर्टिकुलर प्लेस के लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचता है। इंडियन विलेज आर गवर्न्ड बाय द विलेज पंचायत और ग्राम पंचायत। अब इंडिया के जो गांव है वहां पर विलेज पंचायत होती है या फिर ग्राम पंचायत होती है और उसका हेड कौन होता है? सरपंच। द एडल्ट विलेजर्स इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत। सरपंच इज द हेड ऑफ विलेज पंचायत। ओके, तो जितने भी विलेजर्स होते हैं जो एडल्ट होते हैं 18 ईयर से अबव होते हैं वो सब इलेक्शन के थ्रू अपने सरपंच को चुनते हैं। इन बिग सिटीज एंड टाउन्स द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लुक्स आफ्टर द प्रॉब्लम्स एंड मैटर्स रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ पीपल। तो सिटीज भी टू तरह की होती है, कुछ बिग सिटीज होती है, कुछ स्मॉल सिटीज होती है या टाउन्स होते हैं। तो इनमें भी अलग अलग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काम करती है। तो बिग सिटीज होती है वहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चलती है और जो स्मॉल टाउन्स होते हैं वहां पर म्युनिसिपैलिटीज वर्क करती है। ओके, इन स्मॉल टाउन सिटीज एंड सिटीज द अफेयर्स ऑफ द एरिया आर लुक्ड आफ्टर बाय द म्युनिसिपल कमिटीज या फिर म्युनिसिपैलिटीज। छोटे शहरों में म्युनिसिपैलिटीज वर्क करती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और जो बिग सिटीज होती है वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्क करती है बिग सिटीज में। ओके, द हेड ऑफ द म्युनिसिपैलिटी इज नोन एज चेयरपर्सन। तो म्युनिसिपैलिटी का जो हेड होता है उसे चेयरपर्सन कहते हैं और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होता है विच इज कॉल्ड मेयर। ओके, so this is the levels of government. I hope you all like this video. I hope this video is helpful for you all. Okay, so I'm continue with my next video. I will meet you in my next video. Okay, with some another topic. Please like, subscribe the channel. Thank you so much.